This is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now take you over to Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh for the live broadcast of the CISF Day Parade and Investiture Ceremony being organized on the occasion of Raising Day of Central Industrial Security Force, CISF. Our commentators are Nitish Arora in Hindi and Bhuvan Apurva Jha in English. ये आकाशवाणी है। अब हम आपको इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां से आप केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित CISF परेड और अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीतीश अरोड़ा हिंदी में, भुवन अपूर्व झा अंग्रेजी में। आइए इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश चलें। नमस्कार। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का मैं नीतीश अरोड़ा अपने साथी कमेंटेटर भुवन अपूर्व झा के साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की 52वीं स्थापना दिवस डे परेड के इस शुभ अवसर पर 5वीं रिजर्व बटालियन इंदिरापुरम गाजियाबाद स्थित आयोजक स्थल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। Indeed, good morning and welcome to this special broadcast, the Raising Day of the Central Industrial Security Force. I am Bhuvan Apurva Jha, and along with my colleague Nitish Arora, will be bringing you the live second-to-second details of this magnificent day, the day we celebrate CISF, which came into existence in 1969 with a modest beginning, having 3 battalions to provide integrated security cover to the public sector undertakings. Nitish. आज की इस परेड की कमांडेंट के भारद्वाज के हाथ में है और 2IC हैं दीपक मनी तिवारी। अपूर्व, कुछ दिन से दिल्ली में गर्मी एकदम से बढ़ गई थी, लेकिन कल रात को बौछारें जो हुई और बूंदाबांदी हुई, आज मौसम बहुत अच्छा है, परेड सज चुकी है और इंतजार हो रही है आज के मुख्य अतिथि का। Indeed, it's a glorious day. After the squall that we had yesterday evening, today is a glorious day as we celebrate the Raising Day of CISF, and in a short while we'll be joined by the Director General of CISF, Shri Subodh Kumar Jaiswal, IPS. We'll also have the Chief Guest of the Day, Shri Ajay Bhalla, the Union Home Secretary, joining us, and thereafter we'll begin this magnificent celebration of the Central Industrial Security Force, the Raising Day of CISF. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 में अस्तित्व में आया। 3 बटालियनों के साथ साधारण सी शुरुआत करके उन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों यानी PSU को एकीकृत सुरक्षा प्रदान की जो वर्षों में अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों पर थे। 4 दशकों की इस अवधि में CISF ने कई गुना वृद्धि की है। Yes, and we have had the chief guest of the morning, Shri Ajay Kumar Bhalla, the Union Home Secretary, arrive along with Director General CISF, Shri Subodh Kumar Jaiswal. The general salute and inspection of the parade being done by CISF. Whereafter, we'll begin with the march past, the CISF march past, which also has won, in fact, the best marching contingent at the recently concluded Republic Day Parade 2021. As Shri Ajay Kumar Bhalla, accompanied by Shri Subodh Kumar Jaiswal, stand atop the main dais, the parade commander, KK Bharadwaj, makes his way up to the base of the dais for the general salute. आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी का आगमन हो चुका है और अब उन्हें परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। Indeed, Shri Ajay Bhalla, the Union Home Secretary, dressed in all-black suit, wearing the traditional headgear of the CISF, accompanied by DG CISF, now making their way at this magnificent 5th Battalion ground to a round of applause from expectant crowd here. Officers and families of those officers, everyone attending. It's a proud moment for each one of them. They're a family in itself, CISF, and they're here all together celebrating their glorious day. और स्थल इस समय न सिर्फ ऑफिसर से बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा भी यहाँ पर सब लोग यहाँ मौजूद हैं
और एक बड़ा दिन होता है। स्थापना दिवस वो दिवस है जब आप अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हैं, और ये पूरा ड्रेस में जो एक पूरी परेड है, ये एक दर्शनीय चीज है। Indeed, Nitish. As the Union Home Secretary makes his way for the inspection of the parade, I can inform you that the first contingent is an all-women contingent of the CISF Commando Force an all-women contingent, followed by the Fire Services Division of the CISF. They specialize in firefighting. CISF, which ironically came into existence on the back of a fire incident, has a dedicated fire service wing. Thereafter, we have the tall, upright men of the CISF standing in their khakis and yellow headgear. 4 columns. Behind them is the CISF band, which will play glorious, melodious tunes throughout the morning as Shri Ajay Kumar Bhalla, accompanied by DG CISF, make their way on the other side of the ground, away from us, for the inspection of the CISF Day Parade. और सुबह से ही बादल छाए हुए थे, लेकिन जैसे ही ये निरीक्षण शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं कि दूर सूरज एकदम से अपना प्रकाश पूरी टोलियों के ऊपर डाल रहा है। यानी ये एक रोशनी, ये जो किरण है रोशनी की, ये एक साहस भी दे रहा है और दिखा रहा है कि किस तरह से हमारे औद्योगिक बल जो है वो जरूरी भी है और किस तरह से उसकी सुरक्षा ये बल कर रहा है। Indeed, the sun is shining on this morning, and indeed on CISF, a testimony to the level of professional competence and standing acquired by the force over the years. As the chief guest, Shri Ajay Kumar Bhalla, the Union Home Secretary, accompanied by DG CISF, make their way past the first group of soldiers and all women's contingent of the CISF dressed in combats, saluting. जी, सबसे पहला जत्था Indeed. महिलाओं का। इस दल में महिलाएं भी शामिल हैं और भारतीय सशस्त्र सेना के हर दल में इस समय महिलाएं भी शामिल हैं। और दूसरा दल अग्निशमन, गहरे नारंगी रंग की यूनिफॉर्म और पीले रंग की टोपियों में ये Indeed, आगे से in गुजरते fact, हुए। Nitish, the fire services unit of the CISF also doubles up as the first response in case of disaster management. Absolutely. It's standing in front of us as the Union Home Secretary makes his way past the columns of soldiers dressed smartly in their khakis and yellow headgear, shoes shining bright against the morning sun, the band playing glorious tunes in the background as Union Home Secretary Shri Ajay Bhalla inspects the guard on CISF Raising Day 2021. जी, मेरा भारत महान की धुन प्ले करता हुआ ये बैंड, और इस समय निरीक्षण चल रहा है। The Guard of Honor being carried out here at the 5th Battalion grounds of the CISF. If you're just tuning in now, let me remind you that you're tuned in to this special broadcast being brought to you by All India Radio Delhi, the Raising Day of CISF 2021. और थोड़ा अगर हम इतिहास में ले जाएं तो 1969 में HECE रांची में एक बड़ी आग की घटना के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अस्तित्व में आया। जिस अद्वितीय अधिदेश के साथ से ये बल अस्तित्व में आया है, यानी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की संपत्ति एवं उनके कर्मचारियों की सुरक्षाएं, फलस्वरूप पिछले 52 वर्षों में बल ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सुरक्षा की गतिशील स्वरूप की बदलती मांगों के साथ में चलते हुए ये बल विकसित हुआ है तथा अपने द्वारा प्रदान की गई पेशेवर सेवाओं को पुनः उन्मुख एवं उनके स्वरूप का अद्यतन तथा स्वयं का कायापलट करते हुए उपक्रम सुरक्षा बल के बहु प्रतिभावान, बहुकार्य, बहुआयामी बल बन गया है, जो कि भविष्य की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। Indeed, Nitish, over the years, the CISF has provided consultancy services to more than 138 different organizations, including those in the private sector. After the Mumbai terrorist attack on November 2008, the mandate of the force has been broadened to provide direct security cover to private sector also. The CISF Act has been amended, heralding a new chapter in the glorious history of this illustrious force.
भुवन, ये दल एक जरूरत आधारित बल है और आत्मनिर्भर बल प्रबंधन द्वारा लागत प्रतिपूर्ति और सरकारी खजाने पर बोझ नहीं है। यूनिट में बल सदस्यों की संख्या 16 से 12,500 तक है। जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, समूचे पूर्वोत्तर भारत जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी एक रूपता से इसकी तैनाती की गई है। Yes, in fact, if one speaks about the CISF, one has to speak about their role in ensuring the security of critical infrastructure of 351 establishments. CISF is an exclusive force with a specialized fire wing with highly trained personnel. They use extensive state-of-the-art security gadgetry and cutting-edge technologies. The force having the largest public interface, offering security and fire consultancy services, as the Union Home Secretary has made his way back at the base of the main saluting days here at the CRPF 5th Battalion grounds. I beg your pardon, CISF 5th Battalion grounds. Union Home Secretary alighting from the specially designed Gypsy, accompanied by DGCISF, and now making his way at top the main saluting days, as in a short while from now, the parade will get underway. The parade commander, KK Bharadwaj, saluting the main chief guest for the morning and making his way for the beginning of this parade on CISF Day 2021. जी, परेड का निरीक्षण संपूर्ण हो चुका है और अब परेड कमांडेंट ने श्री के भारद्वाज कमांडेंट, उन्होंने परेड को विधिवत शुरू करने के लिए कमान अपने हाथ में लिया है। थोड़ी देर में ये परेड शुरू हो जाएगी। Indeed, the parade commander making his way back in front of his 2IC. Everyone standing in rapt attention. And Nitish, when you talk of the CISF and when you talk of the men and the women behind these uniforms, one has to talk of the families, the foundation on which these brave hearts stand. The parade IC has called the whole marching contingent to attention. The Nishan Toli now faces the direction of the marching contingents. The Nishan Toli, a symbol of huge significance, is standing and flying tall on this auspicious day on CISF Raising Day. As the parade begins on CISF Raising Day, KK Bharadwaj and his 2IC walking in tandem. Nitish, it's a glorious sight, isn't it? बिल्कुल बिल्कुल भव्य परेड अब शुरू हो चुकी है और सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उत्सुकता है उन परिवार के सदस्यों की जो इस समय अपने परिवार के सदस्यों को देख पा रहे हैं अपने सामने, वो कार्य करते हुए जो देश के लिए एक बहुत बड़ा मेडल है। क्योंकि आज विश्व में अगर कोई भी देश आगे तरक्की कर रहा है तो अपने औद्योगिक बल के ऊपर भी कर रहा है और उस उद्योग को सुरक्षा देना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। Yes, in fact, CISF has a stellar role to play in the goal of Atmanirbhar Bharat as pledged by Prime Minister Narendra Modi. And Nitish, one can see why the CISF has gotten the best marching contingent in Republic Day parades. Look at the sync of each and every individual present here. Arms swinging in unison, chest out, heads high. It's a sight to behold, Nitish. और पहला जत्था जब सलामी मंच की तरफ बढ़ रहा है तो जहां हम बैठे हैं सबकी निगाहें अपनी बाईं तरफ चली गई हैं क्योंकि बाईं तरफ से ये टोली हमारे सामने आ रही है और पूरा महिलाओं का जत्था। Yes, it's a significant jatha, as one call it, because it's a display of the Nari Shakti of India. Women CRPF soldiers dressed in all combats, marching behind KK Bharadwaj, the parade commander, and his 2IC on CISF Raising Day.
और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इस धुन पर मार्च करता हुआ यह जत्था सलामी मंच के आगे से गुजरता हुआ And now passing by the main saluting days is the first contingent of the morning, the CISF all women's contingent. A rousing reception here. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया सभी लोगों ने और उसके बाद अग्निशमन दस्ता। ये एक फाउंडेशन है जहां से शुरुआत हुई CISF की। Yes, sir. And it's also the speciality, one of the only central armed police force to have this unit. As columns of soldiers make their way past the main saluting days, listeners, you have to see it to believe it. The synchronization is astounding. No wonder the CISF has been winning the best marching contingent at the Republic Day parades over the years. Nitish. बिल्कुल एक जबरदस्त कदम ताल के साथ कदम बढ़ाते हुए, और जैसा आपने कहा कि हमेशा से ही ये जत्थे जो हैं इनके परेड में विशेष पुरस्कार जीतते आ रहे हैं और आज वो बिल्कुल सामने हमारे दिख रहा है। आपने सुनने वालों को बता दें कि कदम ताल करते हुए बहुत मुस्तैदी के साथ चुस्त मार्च पास करते हुए ये जत्थे एक एक करके आगे बढ़ते हुए। Indeed, a testimony to the level of professional competence and standing acquired by the Central Industrial Security Force over the decades in its service to the nation. As the last column makes its way past the main saluting days, Union Home Secretary Shri Ajay Bhalla looks on, and the band playing melodious, mellifluous tunes one after the other, now making their way slowly but steadily towards the main saluting days, dressed in black and white with their brass bands shining against the morning sun. Oh, it's a glorious morning to be at. मेरा भारत महान, कदम कदम बढ़ाए जा, सारे जहां से अच्छा, विजय भारत, देशों का सरताज भारत। ये ट्यून जो आज यहाँ पर जिनके ऊपर ये मार्चिंग दस्ते ने मार्च किया, और क्या खूबसूरत ये रंग बिरंगी टोलियां जो हैं वो इस तरह से लग रहा है जैसे पुष्प आगे सजा रखे हैं। वही एक पुष्प गुच्छ हमारे सामने से इस समय जाते हुए और अपनी पोजीशन लेते हुए, और सबको इंतजार होगा इस समय डीजी CISF श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी के स्वागत भाषण का, जो आपसे थोड़ी ही देर में अपना स्वागत भाषण देंगे। और उस स्वागत भाषण में यकीनन ये बताया जाएगा कि किस तरह से ये बल अपने देश के उद्योग को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। Indeed, the Director General's address is as important for the members of the CISF fraternity as it is for all of us in general, because as you said earlier in the program, the CISF has a big role to play in ensuring India's economic success and ensuring Atmanirbhar Bharat vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. भुवन, दिल्ली के लोगों को इस दल के लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली की लाइफलाइन, दिल्ली मेट्रो का जो सुरक्षा का जिम्मेदारी है वो भी इस बल के हाथ में है। Of course, yes, indeed. They're a well-known face in Delhi, and I have a personal anecdote to share here. I had lost my wallet at one of the metro stations, and I remember a CISF gentleman coming and helping me out, and it's been remaining ever etched in my memory since. And I'm so happy and proud to be a part of this force on their proud raising day. और ही कुछ दिन ही पहले ये बल फिर से एक बार न्यूज में था, जब एक पैसेंजर एकदम से उसको हार्ट अटैक आया, और किस तरह से CISF बल के साथी ने, सहयोगी ने उसको वापस होश में लाया। It's a force with a humanitarian face. It's the government's largest public interface in terms of police and civilian interface. As the parade comes back to attention, जी, परेड the अपने समीक्षा क्रम निश्चित स्थान पर जाकर खड़ी हो गई है। समीक्षा क्रम में
तालियों के साथ यहाँ पर उपस्थित जनसमूह ने और ऑफिसर ने इस परेड का समीक्षा में आने से पूर्व परेड कमांडर द्वारा परेड को सजाया गया। Yes, all contingents here standing in rapt attention for the Samiksha Kram after the parade had taken place. The parade commander calling, and each of them, each contingent now marching a pre-specified number of steps and coming to rapt attention. That's the Samiksha Kram. देशों का सरताज भारत. That was the band tune played during the Samiksha Kram. The parade commander has called the parade at ease as Union Home Minister takes his seat along with DGCISF Shri Subodh Kumar Jaiswal, IPS of the 85th batch, the Union Home Secretary here with us, here with CISF, and here with this brilliant force on the raising day. And now we go in and tune in and listen to the Director General of CISF, Shri Subodh Kumar Jaiswal's address. माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला जी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक एवं पूर्व महानिदेशक, विशेष अतिथिगण, मीडिया प्रतिनिधि, सीआईएसएफ परिवार के मेरे साथियों, देवियों तथा सज्जनों, सीआईएसएफ के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सीआईएसएफ परिवार की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आपके आगमन से यहां उपस्थित बल के हर सदस्य का मनोबल बढ़ा है। हम आपके आभारी हैं। उपस्थित सभी मान्यवरों ने यहां पधार कर हमें प्रोत्साहित किया है। इस बल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। महोदय, वर्ष 2007 से लेकर 2020 के बीच राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में सीआईएसएफ कंटिजेंट को बेस्ट मार्चिंग ट्रॉफी अब तक 6 बार मिल चुकी है। महोदय, ये हमारे प्रशिक्षण, लगन व कुछ कर गुजरने की लालक का परिणाम है। आज की यह परेड भी हमारी इसी उत्साह व समर्पण का विस्तार है। इस भव्य परेड में शामिल अधिकारी व बल सदस्यों ने बहुत कम समय में सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानकों को अपनाते हुए एक उच्च स्तरीय परेड का प्रदर्शन किया है, जो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। महोदय, इस अवसर पर पहले मैं सीआईएसएफ के 4 कर्मठ बल सदस्यों, उप निरीक्षक महावीर प्रसाद गोदारा, प्रधान आरक्षक हिरण्य नायक, आरक्षक महेंद्र कुमार पासवान एवं आरक्षक सतीश कुमार कुशवाहा को याद करता हूं, जिन्होंने वर्ष 2020 के दौरान अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली एवं ओएनजीसी मुंबई में भीषण अग्निकांड की घटनाओं में आग बुझाने के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। मैं इन शहीदों को अपनी तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मैं बल के उन 44 कर्मठ बल कर्मियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। महोदय, 29 जनवरी 1964 को हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में लगी आग की जांच की गठित जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने
एक अखिल भारतीय केंद्रीय सुरक्षा बल के गठन की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर 10 मार्च 1969 को संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत सीआईएसएफ का गठन एक पूर्णतः प्रशिक्षित अनुशासित वॉच एंड वार्ड फोर्स के रूप में हुआ था। 1 नवंबर 1969 में आरसीएफ मुंबई में 160 बल सदस्यों ने अपनी यात्रा शुरू करने वाला ये बल 52 वर्षों में आज देश के सभी क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा है। आज हम 1,60,000 से ज़्यादा की बल संख्या के साथ 350 के लगभग महत्वपूर्ण और संवेदनशील इकाइयों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें 64 महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के साथ साथ ऊर्जा, इस्पात, कोयला, विद्युत क्षेत्र की परंपरागत इकाइयां तथा अंतरिक्ष व परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अति संवेदनशील उपक्रम में शामिल हैं। महोदय, एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो रेल जैसी जगहों पर हम लार्जर पब्लिक इंटरफेस के साथ सुरक्षा दे रहे हैं और भारत सरकार द्वारा दी गई जिम्मेवारी को पूरा करते हुए वर्ष 2006 में गठित हमारी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप ने आज की तारीख में 102 वीवीआईपीज को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रहे हैं। आज हम सरकारी उपक्रमों के अलावा निजी क्षेत्र के कई एस्टैब्लिशमेंट्स को भी अपनी सुरक्षा कवच में ले चुके हैं। सीआईएसएफ की जिम्मेदारियों का विस्तार कश्मीर के गुरेज से लेकर सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा जामनगर गुजरात से लेकर सुदूर पूर्व सुभानसिरी तक हो चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है महोदय कि इनमें से 52 इकाइयां ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी हमारी सुरक्षा में घेरे में हैं। महोदय, सीआईएसएफ केंद्र का एक अकेला बल है, ऐसा बल है जिसका अति प्रतिष्ठित व प्रोफेशनल फायरिंग है। सीआईएसएफ आज देश के 104 संस्थानों में अग्निशमन दस्ते की सेवा प्रदान कर रहा है। 1983 में इस बल को आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन के तौर पर पावर्स दिए जाने के तत्पश्चात हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट ड्यूटीज़ एवं चुनाव कर्तव्यों में भी भारत सरकार द्वारा सौंपी गई सारी जिम्मेदारियों को हमने प्रभावी ढंग से निभाया है और निभाते रहेंगे। पिछले साल लगभग बल की 360 कंपनियां आंतरिक सुरक्षा व चुनाव की ड्यूटीज़ के लिए विभिन्न राज्यों में तैनात की गई थी। सर, मूलतः सीआईएसएफ औद्योगिक की सुरक्षा से लेकर एयरपोर्ट सुरक्षा तथा वीआईपी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारियां एक डिफेंसिव ऑफेंसिव सिद्धांत पर अपना रहा है, परंतु ऐसा करते वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की हमारी भूमिका के तहत हम ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए भी सदैव कटिबद्ध और तैयार रहते हैं। इस बल के 126 रणबांकुरों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जम्मू एंड कश्मीर सहित देश के अन्य स्ट्रैटेजिक स्थानों पर कर्तव्य पर अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी बखूबी प्रमाणित किया है। महोदय, आज सीआईएसएफ देश के महत्वपूर्ण क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा देने के साथ ही बड़े पैमाने पर धन हानि से भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस बल की अत्यंत प्रोफेशनल अग्निशमन शाखा ने वर्ष 2020 में कुल लगभग 2060 आग की घटनाओं में लगभग 302 करोड़ 53 लाख मूल्य की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान होने से बचाया है। हमारी तैनाती से जहां एक और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनने से औद्योगिक उपक्रमों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ थेफ्ट और सैबोटेज जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक के दौरान हम बड़े पैमाने पर राष्ट्र को लॉस प्रिवेंशन से भी बचा रहे हैं। महोदय, आज सीआईएसएफ अपने मानवीय सरोकारों के लिए भी जाना जाता है। बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे बढ़कर हमारे बल सदस्यों ने एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो जैसी इकाइयों में यात्रियों के सहयोगी के रूप में भी हमारी पहचान आज तैयार हुई है। आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा महोदय कि वर्ष 2018 से 2020 के बीच हमारे बल सदस्यों ने विभिन्न एयरपोर्ट्स दिल्ली मेट्रो में लगभग 34 करोड़ रुपए के मूल्य की लॉस प्रॉपर्टी, जिनमें नगद राशि और अन्य बहुमूल्य सामान शामिल थे, उन्हें सभी यात्रियों को वापस किया है। हमारे बल सदस्यों ने एयरपोर्ट व डीएमआरसी में अनेक अवसरों पर सीपीआर जैसे उपायों से आपातकालीन दशा में पहुंचे यात्रियों को बहुमूल्य जीवन दिया है। इस कार्रवाई का संज्ञान शासन के स्तर पर भी समय समय पर लिया गया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व सम्मान की बात है।
वर्ष 2020 में कालीकट एयरपोर्ट में हुई विमान दुर्घटना के बाद फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सीआईएसएफ ने लगभग 190 यात्रियों को विमान के मलबे से बाहर निकालकर बचाने का कार्य, एनएलसी नेवेली इकाई में थर्मल पावर स्टेशन के बॉयलर क्षेत्र में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग से हमारे अग्निशमन दस्ते द्वारा 17 संयंत्र कर्मियों की जीवन रक्षा तथा तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन श्रीशैलम में भयानक आग लगने के बाद आग में फंसे 9 कर्मचारियों को सुरक्षित निकालना जैसे कई कार्य इस बल की प्रशंसा से जुड़े हैं। इस क्रम में बताना चाहूँगा महोदय कि राष्ट्र के प्रति समर्पित व प्रतिबद्ध हमारे संवेदनशील सभी अधिकारी व बल कर्मियों ने स्वेच्छा से अपने एक दिन के वेतन के बराबर धनराशि लगभग 16,23,82,357 रुपये पीएम केयर फंड में स्वेच्छा से अर्पित किया है। इस अवसर पर मैं बल के कुछ विशेष उपलब्धियां आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। कोविड की इस चुनौती के बाद हमारे बल सदस्यों ने ई कार्यालय वेब एप्लीकेशन विकसित किया है, जिससे कार्यालयों के बीच अब फाइलों की आवाजाही को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर फाइल प्रोसेसिंग में समय की बचत के साथ ही साथ बहुत कम समय में बेहतर ढंग से कार्य पूरे करने का कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है। और सीआईएसएफ के इस ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से हमने लगभग 1 करोड़ रुपए की सरकारी धनराशि खर्च होने से बचाया है। सीआईएसएफ के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हम लगातार अपने आप को एक कॉस्ट इफेक्टिव फोर्स के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच एक समन्वय स्थापित करते हुए नई ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश हमारी तरफ से निरंतर जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि सीआईएसएफ एक क्लाइंट रिस्पॉन्सिव फोर्स के रूप में क्लाइंट्स की आवश्यकताओं के अनुसार काम करने का प्रयत्न करेगा और एक कॉस्टली फोर्स होने का जो परसेप्शन है उसे हम पूरी तरह से बदल सकेंगे। महोदय, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए प्राथमिकता के साथ साथ हमने बल सदस्यों के वेलफेयर को भी उतना ही महत्व दिया है। एक इन हाउस ग्रीवेंस रिडक्शन ऐप उपलब्ध कराने के साथ ही एक रोबस्ट सिस्टम का भी निर्माण किया गया है, जिससे बल के सभी सदस्यों की समस्याओं को हम प्रभावी ढंग से दूर कर सकें। हमारे भूतपूर्व बल सदस्यों की पेंशन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर पेंशनर कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे भी हमारे बल सदस्यों द्वारा विकसित किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भूतपूर्व बल कर्मियों को इनबिल्ट शिकायत निवारण तंत्र के लाभ के अलावा सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे नौकरी के अवसर, पेंशन संबंधित लाभ, अधिक जानकारियां मिल सकेंगे। और महोदय, इस बात को मैं यहाँ जाहिर करना चाहूँगा कि ये मुख्यालय स्तर पर, फोर्स हेडक्वार्टर स्तर पर निरंतर इसको क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि इसमें भी समय ज़्यादा व्यतीत ना होते हुए हम इसका निवारण कर सकें। मैं अपने सभी बल सदस्यों को आज बताना चाहूँगा कि आपके करियर प्रोग्रेशन की ओर भी फोर्स हेडक्वार्टर्स का पूरा ध्यान है। हाल ही में बल में आरक्षक ट्रेड्समैन के लिए पदोन्नति के अवसर आज तक नहीं थे। भारत सरकार गृह मंत्रालय को आरक्षक ट्रेड्समैन की पदोन्नति पर पहल करते हुए प्रस्ताव भेजा गया, जिसे गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया और सीआईएसएफ के इतिहास में पहली बार विगत वर्ष लगभग 996 आरक्षक ट्रेड्समैन को प्रधान आरक्षक ट्रेड्समैन के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2020 तक एक वर्ष में लगभग 8,250 अधिकारियों व बल सदस्यों को भी पदोन्नति दी गई। महोदय, आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज इस बल के 1490 सहायक उप निरीक्षकों को उप निरीक्षक पद पर प्रोन्नति दी जा रही है, जो कि हाल ही में 1/1/2021 से ही इस पद के लिए एलिजिबल हुए थे। इन एएसआई साहबान को पदोन्नति के लिए योग्य होने में लगभग 3 माह के रिकॉर्ड समय में भीतर इन्हें सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन देकर इनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। वहीं जिसकी वजह से इस बल के ऑपरेशनल क्षमताओं को भी प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसके लिए मैं बल मुख्यालय के पर्स विभाग को भी, अधिकारियों और कर्मियों को भी बधाई देता हूं और मैं पूरा विश्वास है कि आते हुए समय में
इस समय को जो भी प्रमोशंस हो गए समय पर ही किए जाएंगे, उसमें कोई किसी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाएगी। महोदय, बल की गरिमा को सदैव ऊंचा रखने एवं इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की निरंतरता कायम रखने के लिए हम प्राथमिकताओं के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है बल की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जीरो एरर नीति अपनाना व लागू करना। सीआईएसएफ के हर बल सदस्य को यह समझना होगा कि ऑपरेशनल चुनौतियां दोबारा मौका कभी नहीं देती हैं। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिना किसी गलती के लिए सदा तैयार रहना है। हम बल को संगठन, प्रशिक्षण व फंक्शनल तौर पर जीरो एरर के मानक से जोड़ेंगे। सीआईएसएफ को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने तथा जरूरत के अनुसार ज़्यादा ऑफेंसिव भूमिका स्वीकार करने के लिए हमें एक पैराडाइम शिफ्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर तालमेल हो और कम से कम लागत पर हम प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकें। उच्च स्तरीय उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए सुरक्षा के मानकों को लगातार रिव्यू करने की प्रक्रिया जारी है, जिसे हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है और जिसके लिए नियमित रूप से गहन प्रशिक्षण के द्वारा बल के सभी सदस्यों की योग्यता और कौशल को बढ़ाना हमारा लक्ष्य होगा। महोदय, कहा गया है यू स्वेट इन पीस देन यू ब्लीड लेस इन वॉर। कहने का अर्थ यह है कि पीस टाइम में अगर हम ट्रेनिंग अपनी ज़्यादा करेंगे तो हमें ऑपरेशनल घटनाएं का जब सामना करने पड़ेगा तो हमारी काबिलियत और ज़्यादा अच्छी रहेगी। बल सदस्यों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए और फोर्स में पॉजिटिव कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र व टीम वर्क को सीआईएसएफ में पूर्ण तरह से प्रभावी बनाने की कोशिश जारी है। महोदय, मैं आज इस मंच के माध्यम से भारत सरकार तथा प्रत्येक देशवासी को विश्वास दिलाता हूं कि सीआईएसएफ का प्रत्येक बल सदस्य अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण की भावना से निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी, प्रिपेयर्डनेस इस बल के संस्कार हैं जो हमें किसी भी दायित्व को स्वीकारने व चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सदा ही तैयार व तत्पर रखने में कायम रहेंगे। जय हिंद। किसी भी सुरक्षा बल की नींव अनगिनत कुर्बानियों पर धन्यवाद महोदय। और डीजी सीआईएसएफ पदक अलंकरण श्री सुबोध कुमार जायसवाल ने उन सभी मार्टियर्स को याद करते हुए दल की कमिटमेंट को फिर से दोहराया। सरकार श्री अजय कुमार भल्ला से प्रार्थना करूंगी। अलंकरण समारोह। मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला द्वारा। तथा विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा मेडल से अलंकृत करने हेतु चयनित किया गया है, उन्हें पदक प्रदान करने हेतु पधारें। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक श्री संजय प्रकाश, इंस्पेक्टर जनरल, सेंट्रल सेक्टर मुख्यालय भिलाई। श्री प्रकाश। श्री सुनील कुमार मिश्रा, उप कमांडेंट एमपीटी मुंबई। श्री मिश्रा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र बाबू, एमपीआरटीसी बहरोड। श्री बाबू। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा मेडल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फायर रसपाल दास रिटायर्ड, एमएसटीपीपी मऊदा। श्री दास। सहायक उप निरीक्षक फायर दरमियान सिंह, सेवानिवृत्त, बीएचईएल हरिद्वार। श्री सिंह।
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फायर उत्तर कंवर शर्मा, FGUTPP ऊंचाहार श्री शर्मा। सहायक उपनिरीक्षक फायर रामनिवास, GTPS घाटमपुर श्री रामनिवास। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फायर A नारायणन, SAC अहमदाबाद श्री नारायणन। That was the investiture ceremony. Union Home Secretary Shri Ajay Kumar Bhalla giving out the medals and the commendations to the officers and jawans of the CISF as we await the address by the Chief Guest of the morning, the Union Home Secretary Shri Ajay Kumar Bhalla. श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी, महानिदेशक CISF, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, CISF के बहादुर जवानों, मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, आज मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई सुबह परेड का इंस्पेक्शन करके। CISF एक ऐसी फोर्स है जो बहुत ज़्यादा अब विजिबल हो गई है पब्लिक के साथ। हर मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे सबके साथ डीलिंग है और एक बड़ी वेल नोन फोर्स है। हमारे सारे CAPFs का अगर हम देखें या पुलिस फोर्सेस का हिसाब देखें तो वो लोगों के साथ एक डिफरेंट रिलेशन होता है। दो ऐसी फोर्स बन गई हैं, एक NDRF है जो डिजास्टर में लोगों की सहायता करती है और एक आप लोग हैं जिसका पब्लिक डीलिंग से बहुत ज़्यादा वास्ता है। इस आज CISF के 52वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे को बड़ी प्रसन्नता है और बड़ी गर्व की एक फीलिंग भी है कि इस अवसर पर आपको तथा आपके परिवारजनों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। DG साहब ने कहा कि महामारी कोविड के समय में बहुत सारी सावधानियों को पालन करते हुए आज की इस भव्य परेड का उन्होंने बताया कि इसमें आज थोड़ा स्ट्रेंथ हम ऐसे कम रखते हैं। मैं आप सबको इस अनुशासन, लगन एवं समर्पण के लिए परेड कमांडर, परेड में सम्मिलित सभी अधिकारी एवं जवानों और वीरांगनाओं को बधाई देता हूं। 1969 में DG साहब ने बताया कि ये एक सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रमों के लिए रक्षांकन के लिए एक सुरक्षा फोर्स बनाई गई थी और आज उसका एक आकार जो 3000 से शुरू होके 1,63,000 तक पहुंच गया है। ये आप सभी के हार्ड वर्क, कर्मठता का एक वो एग्जाम्पल है। आगे चल के हमें इस फोर्स को और भी बढ़ाना है और सरकारी उपक्रमों के अलावा भी हमें इसको आगे देखना है कि हम और देश की जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में ना भी हों, उसकी सुरक्षा में भी हमें आगे बढ़ना है। आज की सुरक्षा परिदृश्य में देखते हुए देश को नित्य नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि CISF अपनी दक्षता, कार्यकुशलता एवं चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढालकर खतरों से निपटते हुए देश के विकास में निरंतर भागीदारी निभा रही है। बल को विविध क्षेत्रों में सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को सौंपे जाने का वास्तव में बल की क्षमताओं के प्रति सरकार के विश्वास का परिचायक है। जैसा कि मैंने कहा कि आगे चल के हमें इसके अलावा और भी देश की जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उसके लिए भी हमें आगे काम करना है। आपकी दक्षता को देखते हुए परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष केंद्रों सहित 350 से ज़्यादा प्रतिष्ठानों के बारे में DG साहब ने बताया कि इसमें CISF अपनी और निजी संस्थान भी हैं ऑलरेडी 10 के करीब, जहां पे आप अपना काम बखूबी निभा रहे हैं।
पिछले कुछ दशकों में कई बड़ी चुनौतियां का बड़ा प्रभावी रूप से सामना किया है आप लोगों ने। उन्होंने कुछ घटनाएं बताई हैं। 1999 में कंधार घटना के बाद देश के सभी एयरपोर्ट्स पे आपका दायित्व आया, और जब से वो दायित्व आया है, बड़ी खुशी की बात है कि इस तैनाती के पश्चात किसी भी एयरपोर्ट क्षेत्र में किसी तरह की भी सुरक्षा चूक नहीं हुई है, और आप लोगों ने अपना काम बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से निभाया है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ भी है। सीआईएसएफ ऐसा अकेला बल है जो प्रतिदिन एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो रेल एवं देश के सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बड़ी संख्या में आम नागरिकों के सीधे संपर्क में आता है। डीजी साहब ने आपकी कुछ अच्छी अचीवमेंट्स बताई, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि जो पब्लिक डीलिंग जहां होती है वहां पे क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन हमें सीआईएसएफ के हमारे जवान और वीरांगनाएं जो ड्यूटी निभा रहे हैं, इसमें हमें बहुत नेग्लिजिबल के करीब ही शिकायत मिलती है, और वो भी कभी कभी वेस्टेड इंटरेस्ट से मिलती है। इस बिहेवियर के लिए, इस कोऑपरेटिव बिहेवियर में आम लोगों के बीच एक अच्छी छवि बनाना बहुत मुश्किल काम है। आज के दिन में लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट आप लोगों ने बड़ी अच्छी छवि बनाई है। सुरक्षा कर्तव्य के साथ ही इस बल के सदस्यों का एक संवेदनशील मानवीय पहलू भी हमारे संज्ञान में आया, जैसे कोई चीज़ें भूल जाता है या ट्रेन से गिरा हुआ व्यक्ति सडनली सीआईएसएफ के जवान ने उसको घसीट के ट्रेन के नीचे जाने से बचाया। ये एक टीवी पे देख के बड़ा गर्व महसूस होता है हम सबको कि बड़ा हमारे लोग अच्छा काम करते हैं। 2001 में संसद हमले के पश्चात दिल्ली में भी बहुत सारे सरकारी संस्थानों पे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत सारे वीआईपीज़ के सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको सौंपी गई है। ये भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि सरकारी दफ्तरों के वहाँ पे काम करना, जहाँ पे बड़े लोग, मिनिस्टर्स और सब लोग आते जाते हैं, और अपनी एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इमेज बना के वहाँ पे सुरक्षा को कड़ी दृष्टि रखना, और लोगों को ये भी फील नहीं होने देना कि हम उनको खराब तरीके से चेक करते हैं। तो ये आपकी ट्रेनिंग मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे से करी गई है, और हम कई बार देखते हैं हमारे पास बड़ी डिमांड आती है कि हमें इस जगह पे भी सीआईएसएफ की आप लगवा दीजिए ड्यूटी, क्योंकि हमारा यहाँ चेकिंग अच्छे से नहीं होता है, हम सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है हमारे यहाँ काम करने, जो सरकारी अफसर दफ्तर भी हैं। तो ये आप अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की ट्रेनिंग का अच्छा नतीजा है। ये बल के लिए बड़ा अत्यंत गर्व एवं सम्मान का विषय है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सीआईएसएफ के 4 बल सदस्यों का, जिनका जिक्र डीजी साहब ने किया, भीषण आग में मुंबई और एक दूसरी जगह के, उसके लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत की उनको सम्मानित किया गया है। इन वीर जवानों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो भी उनके परिवारजनों के लिए सरकार की तरफ से और सीआईएसएफ की तरफ से किया जाना चाहिए, वो मेरा आइडिया है कि वो अब तक कर दिया गया है, लेकिन जो भी उसमें अगर कमी है तो उसको करना चाहिए। कोरोना महामारी के आरंभिक दौर में सीआईएसएफ ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह काम किया। सभी हवाई अड्डों पे शुरू में इस महामारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। सीआईएसएफ ने आगे बढ़ के ट्रेनिंग भी लिया, एनडीएमए के अधिकारियों के साथ मिलके बहुत जगह ट्रेनिंग करा भी गया। बहुत सारे एयरपोर्ट पे संस्थाएं होती हैं अलग अलग से, जिनके के लिए कि काम करना पड़ता है, और इनिशियली बहुत सारी मुश्किलें आई थी विदेशों से लौटते हुए भारतीय नागरिक या विदेशों से आने वाले लोग, लेकिन सीआईएसएफ ने हर एयरपोर्ट पे जहाँ भी दिक्कत आई, बड़े अच्छे से उसको सिस्टम से बना के एक स्मूथ किया, जिससे गृह मंत्रालय को बड़ा अच्छा लगा कि हमारी एक फोर्स ने हमारी जहाँ भी पब्लिक डीलिंग में हमें एम्बेरसमेंट होने से बचाया। उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इसके अलावा इस संक्रमण में आपने अधिकारियों एवं बल कर्मियों ने बड़े पैमाने पर प्लाज्मा दान, रक्तदान, ज़रूरतमंदों के लिए खाद्य पदार्थ, फेस मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें भी वितरण की, और अपना एक फोर्स का जो कल्चर होता है उसको आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, इस महामारी में डीजी साहब ने बताया, जूझते हुए 44 जाबाजों ने कर्तव्य निष्ठा की वेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। मैं ऐसे वीर सपूतों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सबने
डीजी साहब ने बताया कि एक दिन का वेतन बड़ा वॉलंटरीली प्रधानमंत्री केयर फंड में प्रदान किया है। राष्ट्र हित में आपका ये अंशदान वास्तव में सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप सबको जानकारी ही होगी कि जिन कर्मठ बल कर्मियों ने कोविड-19 के संघर्ष काल में कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिवारजनों की आर्थिक सहायता के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन शहीदों के नाम भारत के वीर पे पोर्टल में अंकित किया जाएगा और प्रत्येक शहीद के परिवारजनों को 15 लाख रुपए तक की राशि मिलने का प्रावधान है, वो दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये राशि इन शहीदों के परिवारजनों की आर्थिक स्थिति को संभालने में सहायक भी सिद्ध होगी। अग्निशमन के बारे में डीजी साहब ने बताया। मैं पहले पावर सेक्रेटरी था। बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जहां पे आप सब डिप्लॉयड भी हैं और वहां पे आपकी फायर यूनिट्स भी हैं। कुछ मैंने क्लोजली भी देखी हैं और कुछ इन्हीं पावर प्लांट्स के वहां पे फायर सर्विस वालों को मेडल दिए। तो मेरे को अपना पिछली पोस्टिंग के बारे में भी बड़ा गर्व है कि मैं आज कुछ लोगों को उन जगहों पे अच्छा काम करने के लिए मेडल दे पा रहा हूँ। CISF एक और मामले में अनूठा बल है। इसके खर्च का भार केंद्र सरकार के खजाने से नहीं जाता है। आप अपनी सेल्फ सस्टेनिंग एक फोर्स हैं जो कि सरकारी प्रतिष्ठानों से जो अपना राजस्व आता है उससे अपना काम चलता है। डीजी साहब ने जरूर कहा कि एक कॉस्टली फोर्स मानी जाती है। कभी कभी हमें ये समझना चाहिए कि आज कंपटीशन के ज़माने में एक्स्ट्रा खर्चा जहाँ भी होने से हमारी जो भी उत्पत्ति है, अगर वो हम दुनिया के दूसरे देशों से compete नहीं करेंगे तो हम उसको आगे बेच नहीं पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। या बिजली भी बनाते हैं तो सस्ती बिजली नहीं बनाएंगे, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उस पर अगर हम अपनी इस कॉस्टिंग को ध्यान रखें तो देश की सेवा में ये एक और बड़ा कदम होगा। मुझे पूरा विश्वास है जायसवाल साहब ने खुद ही इस पॉइंट को रेज किया है। उनकी नेतृत्व में ये चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से देखा जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ा महत्व का विषय है कि CISF आंतरिक सुरक्षा एवं चुनाव कर्तव्यों में भी अहम भूमिका निभा रहा है। मैं महानिदेशक CISF से पूरी तरह सहमत हूं कि इन 51 वर्षों की यात्रा में इस बल ने सभी तरह की चुनौतियों को अनुरूप बदलाव लाते हुए कठिन से कठिन दायित्वों का प्रभावी निर्वहन किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि देश सेवा के लिए समर्पित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप आयुष्मान CAPF योजना 23 जनवरी को गुवाहाटी में लॉन्च की गई। इसको अब हम सारे देश में सभी अपने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मियों के लिए लागू कर रहे हैं। इसमें 24,000 से ज़्यादा अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। ये योजना फेज्ड मैनर में पूरे देश में लागू हो जाएगी और इसके अतिरिक्त CAPF के कर्मियों एवं उनके परिजनों को एक हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे आधार पर CAF कर्मी प्रतिवर्ष उनके परिवारजन 3 वर्ष में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ भी उठा सकेंगे। केंद्र शासन समस्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए हमेशा अग्रसर है। इस क्रम में 2018 में आधुनिकीकरण योजना में हमने 1000 से ज़्यादा करोड़ रुपए की धनराशि भी ईयरमार्क की गई है, जिसमें CAPF को आधुनिक हथियार, प्रशिक्षण उपकरण वगैरह उपलब्ध कराया जाते हैं। CISF का भी उसमें एक हिस्सा है और उम्मीद करते हैं कि उसको प्रोडक्टिवली यूज़ किया जाएगा। मैं ये भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने 2016 से CAPF के शहीद हुए बल कर्मियों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हिंसा कृत्यों में शहीद हुए बल कर्मियों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि को भी 25 लाख कर दिया गया है। J&K के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात CAPF बल कर्मियों को प्रतिमाह मिलने वाले जोखिम और हार्डशिप अलाउंस की भी वृद्धि करी गई है, जो कि राशि 25,000 रुपए तक पहुंच गई है। श्रीनगर या आसपास के क्षेत्र में तैनात बल कर्मियों को दिल्ली से श्रीनगर एवं जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा के दौरान हो रही असुविधाओं को ध्यान रखते हुए
और अब कर्तव्य में अवकाश के दौरान निःशुल्क हवाई यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। हम सीएपीएफ कर्मियों की आवास संबंधी समस्याओं को निवारण के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल इस क्षेत्र में 55% लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और वर्ष 2024 तक 65% से अधिक लक्ष्य प्राप्ति की हमारी योजना है। हमारा ये विजन है कि हम जितने से अपने कर्मियों को अच्छे से रहने की सुविधा प्रदान करें ताकि वो अपने फैमिली के साथ भी ज़्यादा समय बिता सकें। ये भी प्रसन्नता का विषय है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के भारत सरकार के लक्ष्य में सीआईएसएफ ने अग्रणी भूमिका निभाई है। आज सीआईएसएफ में महिला कर्मियों का सहभागिता प्रतिशत केंद्रीय पुलिस बलों के बाकी बलों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। बल्कि ये बहादुर महिला कर्मी पुरुषों के समकक्ष सभी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी सीआईएसएफ में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि होगी, जो महिला सशक्तिकरण की ओर से बल का एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा। मुझे खुशी है कि देश हित में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी एवं जागरूकता अभियानों जैसे स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, बृहत वृक्षारोपण, जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए देश भर में स्थित सीआईएसएफ की सभी इकाइयों में बल सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जनमानस को जागरूक भी किया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीआईएसएफ संरक्षण एवं सुरक्षा में लक्ष्य की प्रतिबद्धता एवं कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करेगा और जैसे कि जायसवाल साहब ने कहा कि एक जीरो एरर के उसमें हमारा टारगेट रख के आगे बढ़ेगा। मैं एक बार पुनः इस अवसर पर आपको एवं आपके परिजनों को हार्दिक बधाई देते हुए बल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जायसवाल साहब जिन्होंने अभी कुछ ही महीनों पहले इस बल की लीडरशिप को अपने हाथ में लिया है, अपने पुराने एक्सपीरियंस महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी किया है। इस बल को नेतृत्व देते हुए बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी ने अपने संबोधन में बल की भूरी भूरी प्रशंसा की और क्यों नहीं, खासकर ये कहना कि जब से हवाई जहाज और हवाई अड्डों की सुरक्षा इस बल को दी गई है, कोई भी हाईजैक इंसिडेंट या ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। Indeed, and now the DG CISF Shri Subodh Kumar Jaiswal presenting the CISF memento to the chief guest of the morning, धन्यवाद महोदय। Union Home Secretary Shri Ajay Bhalla. They sit side by side on the main podium as the parade commander gives the call. The Nishan Toli will now slowly march off, followed by the different contingents present here this morning at the 5th Battalion grounds of the CISF on the Raising Day 2021 of the Central Industrial Security Force. Parade Commander gives the call and the Nishan Toli surely but steadily making its way, all uniformed, saluting, the civilians standing in rapt attention as a matter of attention. Every uniformed personnel here saluting the Nishan Toli. It's a matter of great respect and honor. It's a sacrosanct flag. The Nishan Toli in front of the main saluting days, being saluted by one and all in the uniform. जी, निशान के सम्मान के लिए कोई भी बल अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार रहता है और अब निशान टोली मार्चिंग ग्राउंड से बाहर जाते हुए यानी विधिवत अब समापन इस समारोह का हो रहा है।
अपने सुनने वालों को बता दें कि वर्तमान में सीआईएसएफ देश के 351 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है, जिसमें देश के 64 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हवाई अड्डे, परमाणु एवं अंतरिक्ष संस्थान, समुद्री बंदरगाह, बिजली उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, इस्पात, कोयला, अन्य खनन के क्षेत्र एवं तेल के प्रतिष्ठान, दिल्ली मेट्रो, सरकारी भवनों, संग्रहालयों, ऐतिहासिक विरासत के स्मारकों जैसे ताजमहल, लाल किला, विशिष्ट व्यक्तियों एवं निजी उपक्रमों की सुरक्षा इत्यादि शामिल हैं। Indeed, the parade commander now making his way in front of the chief guest, Union Secretary Shri Ajay Kumar Bhalla, seeking his permission to dismiss the parade. K.K. Bharadwaj, dressed smartly in his khakis in yellow, the parade commander for this morning, has sought permission from the chief guest and is making his way back to his 2IC, his columns standing in rapt attention. And Nitish, when one talks of the CISF, one obviously will talk of their contribution in terms of law enforcement and security. But when talks of the force in terms of their footprints on the society, I've been informed that during the last monsoon season last year, CISF personnel planted around 9 lakh saplings across the country, carrying out a continuous campaign for rejuvenation of community water bodies in their vicinity. Truly a force with a humanitarian face, truly a force with a heart. और कोविड के इस काल में 44 सीआईएसएफ कर्मियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, आम जनता तक, आम लोगों तक हर उस बेसिक फैसिलिटी को पहुंचाने के लिए जो पूरे भारत बंद के दौरान शायद बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो जाती। Indeed, Nitish, the strength, discipline and mental composure of the CISF personnel also reflected in their International Yoga Day celebrations and the commitment to a just cause. The Fit India campaign reinforcing their endurance and enhanced physical competency. As the parade now marches off, the parade commander has sought permission from the Union Home Secretary, and we are once again witness to an absolute synchronization display. All the parade columns marching off in unison, slowly but steadily. We are heading towards the conclusion of this momentous CISF Raising Day 2021, a live and exclusive broadcast coming to you on your digital devices and radio sets on All India Radio. सीआईएसएफ के ये गर्विले जवान न सिर्फ जहां जहां पर तैनात किए जाते हैं वहां पर ही अपने बल के लिए गर्व हासिल करते हैं, बल्कि आज इस परेड के साथ उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से वो चुस्ती फुर्ती के साथ देश के लिए और देश के उद्योग के लिए खड़े हैं। Indeed, yes, they stand shoulder to shoulder with all law enforcement officers, the whole civil society, as we march forward for the goal of a prosperous, wealthy, equitable India, an Atmanirbhar Bharat, a vision as announced by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As the last of the columns, the bands slowly merging into the eye line. They're moving out of the main parade grounds here on CISF Raising Day 2021. And Nitish, I have been informed that the Union Home Secretary, along with DG CISF, will be embarking upon a tree plantation. CISF, as I just informed you, during the last monsoon season, were involved in planting around 9 lakh saplings across the country, and they are also carrying out a continuous campaign for rejuvenation of community water bodies in their vicinity. जी, उद्योग और आम लोगों की सुरक्षा के साथ साथ एक और एस्पेक्ट है सुरक्षा का, और वो है पर्यावरण की सुरक्षा का, और उसके लिए भी सीआईएसएफ कार्य कर रहा है और प्लांटेशन के लिए कार्य कर रहा है. Indeed, but before the plantations, we'll have the demonstrations, the daredevils of the CISF now making their way to a rapturous applause by all present here. It's an all-women contingent. Nitish, can you spot them? जी, ये कहना तो बहुत आसान है कि हमने ये किया या वो किया, लेकिन ये कैसे किया,
शायद किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि उस मौके के ऊपर वहां पहुंचना इतना आसान नहीं होता आम आदमी का। आज उस सब चीज की डिमॉन्स्ट्रेशन यहां दी जाएगी कि किस तरह से इनका अग्निशमन बल किस तरह से प्रोटेक्शन करता है या कहां कहां पर ये प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में ये डिमॉन्स्ट्रेशन दस्ता है कि यहां आ चुका है और इस समय वो अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं लोगों को। Indeed, they are going, the bayonets in their hands, it's like an extension of their body. They're attached to it. The weapon is an extension of their self. You will have to see to believe it, ladies and gentlemen. The synchronization, each of them knows what the other is going to do as the bayonets are twirling around. They're literally twirling around. And I can assure you that they're not very light to hold. These are, after all, professional soldiers holding professional weapons. सुरक्षा के लिए शौर्य की जरूरत होती है, दमखम की जरूरत होती है, लेकिन अगर उसमें कला भी डाल दी जाए तो वो जो इस तरह से संगम यहाँ पर हो रहा है वो देखने लायक है कि किस तरह से कॉलम्स आगे मूव कर रहे हैं, किस तरह से अपनी सुरक्षा राइफल को वो घुमाकर एक जबरदस्त सिंक्रोनाइज्ड एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं और सब स्तब्ध होकर देख रहे हैं इसको यहाँ पर। Indeed, an absolutely mesmerizing display of synchronization by the CISF personnel here on the raising day. Professional soldiers playing around with professional weapons shows you how much of the commitment they have for each other. The weapon is their friend and their only friend in the war zone, as the CISF personnel showing us an awesome, enthralling display. Each step measured, the number of steps predetermined. This is hours and countless hours of practice in display in front of us. And wow, they fade out, fade in of the eye line as easy as they come in. This और is अब ऐसे लग रहा है जैसे एक mesmerizing. बिल्कुल एक दीवार के फॉर्मेट में आ गए हैं, सब एक साथ, सब सोल्जर्स एक साथ। और आपने बिल्कुल सही कहा भुवन के एक सुरक्षा कर्मी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साथी उसकी बंदूक होती है, लेकिन वो शौर्य के साथ साथ में पीस टाइम के ऊपर भी उसके साथ रहती है और वो उसको बहुत ध्यान रखता है हर समय। अगर वो राइफल अगर उसके साथ नहीं है तो आप ये समझिए कि उसको लगता है कि अधूरापन है कहीं पर। और आज उस राइफल के साथ किस तरह से खेल भी करके दिखा रहे हैं। जब किसी को शौर्य दिखाना है तो यही जब आवाज निकालती है और दूर दूर तक दुश्मन जो है वो पस्त हो जाता है, लेकिन आज उसी गन को किस तरह से यहाँ पर कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। Indeed, Nitish, the weapon is the only friend of the soldier. As these 25-30 odd gentlemen of the CISF in front of us present a mesmerizing display of coordination, synchronization. One can, oh my God, they're forming a wave, a human wave in front of us. You might have seen waves in the stadiums in matches, in football matches and cricket matches. We are actually witness to a human wave in front of us. CISF personnel in their traditional ceremonial uniform with their weapons forming it's a sinusoidal wave. For science students, if you have seen a sine wave, how it goes up and comes down, the crust and the trough, it's happening in front of us with human heads. And absolutely mesmerizing display. एक लहर से उठ रही है जिस तरह से, उस तरह से यहाँ प्रतिबंधित दिखाया जा रहा है। और आप ये देखिए कि जो उनकी गन है वो उनके एक पर्सनालिटी से अलग नहीं लग रही, जैसे लगता है कि साथ में ही हिस्सा है, उनके पूरे वजूद का एक हिस्सा है। Indeed, like I said, it's an extension of their personality. These gentlemen and ladies have been trained to treat their weapon with the utmost respect it deserves. Weapon is their best friend. It is the source of life for them. इस सारी ड्रिल को यहाँ जिस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है, उसके पीछे अनगिनत मेहनत होती है। आज हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी कई बार, क्योंकि हम ग्लोबल सिटीजन भी हैं, देर रात तक जागे रहते हैं, सुबह देर से उठते हैं, लेकिन एक फौजी और एक सुरक्षा बल में जो भी सुरक्षा कर्मी है, उसका दिन सुबह सवेरे सूर्य के साथ होता है और सबसे पहले वो प्रैक्टिस ड्रिल्स के साथ करता है, एक्सरसाइज करता है अपने आप को फिट रखने के लिए। And more than fitness, Nitish, it is the discipline that organizations and forces like the CISF seek to inculcate
which serves us as a country in good stead in the long run. And the waves continue to be formed in different hues and colors, different shapes and sizes. I can assure you this is not easy to do. This is countless hours of practice and dedication, each step in sync with the other. Everyone knows what's going to happen. They are going in T+1 seconds. They basically know what's going to happen after 1 second. That's the level of confidence they have on themselves and their comrades in arms. और ये करीब 30 के करीब सैनिक हैं जो इस तरफ इस समय डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। और यहाँ जितने भी लोग इस समय बैठे हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे जवानों के परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं, वो इस समय देख जैसे उंगली दबा लेता है ना, अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, उस तरह से इसको देख रहे हैं। Indeed, the chief guest of the morning, Shri Ajay Bhalla, the Union Home Secretary, looking on as DGCISF appreciates his men, presenting a stupendous synchronization display. The parade commander presenting his salute to the chief guest and his director general. और जी, इस तरह से रोटेट करते हुए गन्स के बीच में से निकलते हुए जा रहे हो और कहीं एक गन टच भी नहीं करेगी। ये भी एक देखने वाली चीज है। Rapturous applause here. And I can spot a few kids in the crowd, most excited as usual. One hopes many of them go on to join organizations such as the CISF and serve the country in one way or the other. क्यों नहीं, लेकिन बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपनी जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। और यकीनन भारत के युवाओं में शौर्य की कहीं पर भी कमी नहीं है। Indeed, well said, Nitish. As the attending crowd here, everyone applauding. And now from my right, जवान अब हमारे सामने से निकल गए हैं। दूसरी तरफ हमारी दाईं तरफ हम देख सकते हैं कि सिविल यूनिफॉर्म में, सिविल कपड़ों में कुछ जवान सामने बढ़ रहे हैं और किस तरह से ये उद्योगों की रक्षा करते हैं या आम लोगों के जान मान की रक्षा करते हैं, शायद वो अब यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। Indeed, making their way from the right towards where we are sitting, just beside the main saluting dais, we have a group of men and women dressed in civilians, and quickly they regroup. भुवन, आप देखेंगे कि ये शायद इस तरह का एक सीन क्रिएट किया जा रहा है कि जहां पर मीडिया भी कवरेज कर रही है और कुछ ऐसा हमला होता है जहां पर सीआईएसएफ प्रोटेक्शन देती है, तो कुछ लोग सिविलियन यूनिफॉर्म में आप देखिए कि मीडिया कर्मियों की तरह भी मौजूद हैं, हाथ में माइक्रोफोन है। Indeed, a setting of a press conference has just been assembled in less than 10 seconds, as we will see now how CISF intercepts high-pressure critical situations for which they have been trained. CISF presenting us a live demo on their raising day. जी, बहुत सी जगह पे मीडिया पहुंचा होता है और बहुत बार हम इनके कार्य को देख भी पाते हैं अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, या सुन भी पाते हैं आकाशवाणी के माध्यम से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इनके कई कार्य ऐसे होते हैं जो आम लोगों तक, जनता तक नहीं पहुंच पाते। उसकी एक डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ दी जा रही है कि किस तरह से ये सुरक्षा प्रदान करता है ये। In fact, Nitish, this reminds me, whenever we have live broadcasts and special broadcasts such as this, we often do it from Vigyan Bhavan, one of the most prominent buildings in New Delhi, which is also guarded by the CISF. And as we see a lady officer of the CISF coordinating the security arrangements in this live demonstration in front of us, we have people standing as the audience, we have some news persons with the camera. Obviously a demonstration of how security is ensured, the security apparatus and the strategy that CISF employs in delivering high and critical assignments
वीआईपी और वीवीआईपी को सुरक्षा प्रदान भी सीआईएसएफ करता है। उसका एक प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है कि किस तरह से क्या कुछ करना पड़ता है। आपको मालूम है कि कहीं पर भी कुछ भी जब आयोजन होता है तो उसके लिए तैयारी बहुत समय पहले शुरू हो जाती है। Indeed. And we see that we have a car approaching of what we are being said is a VIP now approaching this live demonstration, pilot cars, escort vehicles and spare cars, the full 9 yards being done in this live demonstration. CISF is involved in proximity security, not just for VIPs but for several high net worth individuals. हमारे सामने अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि जैसे वीवीआईपीज को सुरक्षा कैसे प्रदान सीआईएसएफ करता है। तो पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन में इस समय एक कैवलकेड आया है वीवीआईपीज का, जो जैसे ही अपने स्थल पर पहुंचेंगे और दिखा रहे हैं कि उस कैवलकेड के साथ साथ किस तरह से भागते हुए सीआईएसएफ के कमांडोज जो हैं वो उनको सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं और किस तरह से वो वीआईपी अब मुख्य मंच की तरफ आ रहा है। ये सब डिमॉन्स्ट्रेशन दी जा रही है, ये एक्चुअल नहीं है कि ऐसा स्थल के ऊपर ऐसा होता है, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर। वालों को बता दें, the VIP car being escorted by men in black with their weapons, Kevlar vest. Yes, Kevlar vest. The briefcase, the Kevlar briefcase that can stop bullets in close proximity. It's actual demonstration of how CISF carries out its duties on a day-to-day basis. और ये सबसे पहले दिखाया गया कि आयोजन से पहले ही, शुरू होने से पहले ही आयोजन स्थल के ऊपर जब सीआईएसएफ के जवान पहुंच जाते हैं, अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है। उतनी देर में ये वीआईपी कैवलकेड यहाँ पर आया। वीआईपी महोदय आए और उनके साथ भी इनके कमांडोज सीआईएसएफ के उनके साथ साथ उनको लेकर आ रहे हैं। Yes, the VIP has arrived in all whites. From what it looks like, he's a political figure. The CISF already present in the live demonstration area has sanitized the area, has carried out the anti-sabotage checks. As the guest at this make-believe press conference has arrived with real CISF guards. And so as soon as the first hint of threat was observed, the guest was covered by all four sides and a retaliatory shot fired, giving enough time for the guest, the VIP, to escape. जी, यहाँ बिल्कुल दिखाया गया कि जैसे ही वीआईपी सामने आ रहे थे और कहीं पर ऐसा अंदेशा हुआ कि उनके ऊपर हमला, जैसे ही आवाज आई हमला होने की, वैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने, सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया मुख्य अतिथि को और उनको बचा दिया कि ह्यूमन शील्ड उनको दी ताकि उन तक कोई आंच नहीं आए और किस तरह से उनको मुख्य आयोजन स्थल तक लेकर आ गए। Yes, 100% precision. That's what's at play here. When you are protecting someone's life, yes, there's no scope for error. The first error is the last error. You cannot afford to have that. CISF making sure with their training, they're well equipped to handle any situation. As the VIP has now made his press conference, making his way past, and then suddenly there's a shot from within the press conference. और फिर से matter of second, सुरक्षा बलों ने, सीआईएसएफ सुरक्षा बलों ने किस तरह से एक ह्यूमन शील्ड प्रदान कर दी और दबोच लिया उस व्यक्ति को जिसने शायद ये आक्रमण करने की कोशिश की। ये डिमॉन्स्ट्रेशन इस समय शायद ये परिवार के सदस्य भी पहली बार देख रहे होंगे कि उनके परिवार के जो सीआईएसएफ के जवान हैं या ऑफिसर्स हैं किस तरह से कार्य करते हैं। Indeed, the CISF jawan literally jumping on the assaulter. If this was not a demo, I'm sure the assaulter would have had a few broken bones. Once again, the second scenario, the VIP makes his way back to the press enclosure. The press haranguing him for a bite. As we await the scenario, the second, CISF jawans standing in rapt attention around him. और कितनी पैनी नजर रखी है, आपने देखा होगा पहले सिनेरियो में
जो अटैक हुआ वो जहां पर मीडिया कर्मी थे उसमें से शायद किसी ने किया। Yes. और मुस्तैद जवान ने केवल उसी व्यक्ति को दबोचा, बाकी किसी को हार्म नहीं आने दी। Indeed, अब ये indeed. दूसरा सिनेरियो। Once again, the VIP makes his way past the enclosure. Once again, the crowd cheers for him. Once again, the assaulter comes, and broken bones once again. He has been apprehended in less than 1.5 seconds. और There's कितनी no way. तेजी से गाड़ियों के साथ वीआईपी को सुरक्षित लेके जा रहे हैं और किस तरह से उसको असॉल्टर को पकड़ लिया, दबोच लिया। Absolutely. That took less than 3 seconds by my count. बिल्कुल बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला ये Indeed. दृश्य हमारे सामने, ये दृश्य हमारे When it's a सामने matter of life and दिखाया death, गया। 3 seconds is what it's play. For that, और and ये there you have बॉम्ब अटैक के बीच में से सामने एक बॉम्ब अटैक दिखाया गया, जबरदस्त धमाका, और किस तरह से ये कैवलकेड को रोका गया। अब किस तरह से इस सिचुएशन को yes, डील as, करेंगे वो as the दिखाया जा cavalcade रहा है। was making its way, there were explosions in front of them, and all the cars now take a 90-degree turn, 180-degree turn. और रिवर्स में भी उतनी तेजी You have से ये seen गाड़ियां these in चली हैं movies. जितनी आप फ्रंट में जा रहे थे। Nitish, you see these in movies, don't you? And now they are attacked from the second side, और एक अटैक boxed कार between भी आ two गई है sides. और उसको भी रोक लिया है। किस तरह से ये एक Wow. डेमोंस्ट्रेशन दिखाई जा रही है इस समय। That is, the hair is standing at the back of my neck, ladies and gentlemen. It's high adrenaline stuff here we are witness to on CISF Racing Day. Everyone up on their feet, applauding our brave hearts of the CISF, presenting us a live demo of how they carry out security interceptions. जी, ये अभी जो इनेक्ट किया गया है सामने, ये इस समय ऐसे लग रहा है कि इसमें कुछ भी रिस्क नहीं है, लेकिन असल में जब ये सिनारियो पे होता है उस समय ये सोचने की बात है कि कितनी तेजी, कितनी मुस्तैदी और कितनी जिम्मेदारी का काम है सीआईएसएफ के कंधों Indeed, पर। indeed. और इस बीच में जो पिछला दूसरा एक दृश्य है वो भी तैयार हो रहा है और अब शायद उनके अग्निशमन Yes. दल क्या कुछ करते हैं उसके बारे में। यहाँ पर हमारे सामने एक एलपीजी बुलेट टैंक जिसकी कैपेसिटी 10,000 लीटर है एलपीजी की, कितना ज्वलनशील मटेरियल है वो आप सोच सकते हैं, उसकी सुरक्षा भी ये दल करता है। Indeed, CISF also involved in protection of just not nuclear installations, but space establishments, airports, seaports, power plants, sensitive government buildings, and even heritage monuments. And now a live demonstration in front of us as to how the fire safety group of the CISF carries out its... भुवन, इस समय सीआईएसएफ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, कोयला, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, वित्त, मानव संसाधन, उद्योग, गृह मंत्रालय, खदान, तेल एवं प्राकृतिक गैस, विद्युत, रेल, शिपिंग व बंदरगाह, इन सब का ध्यान रख रहे हैं। इन सब की सिक्योरिटी इनके पास है। इसके साथ साथ में स्टील, पर्यटन, शहरी विकास, जल संसाधन, वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी, निजी उपक्रम। Indeed. In fact, Nitish, I'm sure that each of them and the protection of these installations comes with their own sets of challenges, and CISF is still able to carry out each of them as effectively as the Absolutely. other. The That challenge speaks is exclusive volumes to that. about the And expertise of the अब देखिए force. सामने एक पावर प्लांट को आग लग गई है Yes. और अग्निशमन दस्ता किस तरह से In आगे fact, a बचा रहा person है। is literally on fire in front of us, and the fire safety group now approaching. A person is on fire, ladies and gentlemen, on this demonstration being carried out by the CISF. ये One of बिजली the के fuel ट्रांसफार्मर tankers को is on कहीं आग fire. लगी है। जी, Yes, और किस तरह से तुरंत उसी समय उनका दल का जो yes. फायर ब्रिगेड है वो वहां पहुंच चुका है। The और CISF ये- fire safety group approaching the burning depot of the oil. People on fire quickly being helped. The speed of evacuation absolutely astounding. When things are on fire, ladies and gentlemen, you don't have time to react. You do what first is your instinct, and the instinct of each of them, the fire safety personnel of the CISF, is to help ameliorate the situation, be it individually or in a group, everyone working in sync. The और fire फायर hoses ब्रिगेड are की out. गाड़ी जैसे ही आई और देखिए किस तरह से जेट स्ट्रीम के साथ
तुरंत ही उस आग को बुझा दिया गया। ये भी दर्शाता है, जो भी इसे सुन रहे हैं या कभी भी आप देख रहे हैं, कि जब भी कभी अग्निशमन दल की कोई गाड़ी आपके पीछे आती है तो आप जरूर उसको रास्ता दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। समय पर रहते पहुंचेंगे तो आप मिनिमम क्षति कर पाएंगे। Of course, and we see the response time of the CISF. They are as quick as flash, arriving on the spot, and it's within a matter of seconds. The fire is nowhere to be seen. The CISF fire service in action. आकाशवाणी के श्रोताओं को बता दें कि ये बिल्कुल देखने वाला दृश्य है। इस समय हमारे सामने एक पावर प्लांट को आग लगा दी गई डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, और लगभग 1-1.25 मिनट के अंदर ही इस आग को बुझा भी दिया गया, पानी के साथ, झाग के साथ, और साथ में साथ ये भी दिखाया गया है कि एम्बुलेंस का आना भी बहुत जरूरी है। और देखिए अब दूसरी आग दिखा रहे हैं, ये The second fire डिपो में है with explosions. Once again, we have a second column of the CISF fire service unit. Now approaching, sirens blaring. Everyone get out of the way. The fire service people are here. बिजली से लगी आग और अब तेल के साथ लगी आग, तेल के कुएं को लगी आग, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ दी जा रही है। और तुरंत तेजी से एक दूसरी गाड़ी यहाँ पर आ पहुंची है अग्निशमन दल की, और जवान तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अगर 100 मीटर ओलंपिक्स में भागेंगे तो मेडल लेकर आएंगे देश के लिए। The crude oil tanker is on fire, ladies and gentlemen. When you have seen it in movies also, the crude oil, it kind of springs up. The fire springs up. It's not very easy to contain. But the CISF fire unit, well equipped and well trained to handle any sort of exigency. You must have seen in his movies, the crude oil fire has a tendency to spring up and go up as if being fed from the underground. But it is no match for the valor. आग की लपटें एकदम से आसमान की तरफ जा रही हैं, इतनी ऊपर तक चली गई हैं ये आग की लपटें, और किस तरह से तेजी से आगे बढ़कर उन्हें The fire fighting back. Nitish, the fire fighting back. Of course, when it's crude oil, the temperature is going to be very, very high. But the CISF personnel equal to the task with their machines. The fire service unit of CISF presenting an awe-inspiring display of bravery, coordination, synchronization and commitment to the service of the nation. जो आज डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ दिखाई जा रही है, ये लगभग हर दूसरे दिन इस तरह की घटनाएं छोटी मोटी औद्योगिक क्षेत्र में होती रहती हैं, जिसे शायद हम जानते भी नहीं, और किस तरह से तेजी के साथ, मुस्तैदी के साथ जान माल की क्षति को बचाया जाता है सीआईएसएफ के जवानों द्वारा, ये आज यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। Indeed, CISF trained and equipped to fire any sort of exigency at any part of our economic prowess, be it power plants, refineries, airports, seaports. There's one common factor from Bagdogra to Bharuch, from Kargil to Kanchipuram. That is CISF. देखिए कि ऊपर एक बहुमंजिला इमारत के ऊपर कुछ लोग ट्रैप हो गए इस फायर में, उन्हें किस तरह से बचाया जा रहा है ये भी देखने की चीज है। और इस बीच में एक दूसरे एलपीजी टैंकर को आग लग गई है और आग की लपटें आसमान तक जा रही हैं। Indeed, the fire spreading from one tanker to the other, being contained by the members of the CISF. We have personnel of the CISF now approaching in a fire safety suit, going perilously close to the main और जिम्मेदारी उस yes. समय केवल माल की रक्षा नहीं, जान की रक्षा की भी होती है और किस तरह से लोगों को बचाया जा रहा है। और साथ साथ में न सिर्फ अग्निशमन दल है बल्कि उसके साथ साथ में आप एम्बुलेंस भी लेकर आए हैं और थोड़ी सी फोर्स होती है, उसका ध्यान दोनों तरफ होता है कि न सिर्फ माल को बचाया जाए क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और उद्योग को बचाना है वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ ह्यूमन जो डैमेज है वो भी मिनिमम होनी चाहिए, उसको किस तरह से बचाया जाए। आप देखिए आते ही दल दो दलों में बंट जाता है, एक वो जो सीधा उस जहां पर अग्नि लगी है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा वो ये देखता है कि कहां पर कोई ह्यूमन तो नहीं ट्रैप्ड है, कहीं आदमी या कोई इस तरह से व्यक्ति तो ट्रैप नहीं है, और वो सीढ़ी लगाकर रस्सी से किस तरह से वहां तक पहुंचा जा सकता है
क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ऊपर भी आप हैं और जैसे ही आग लगती है धुएं से चोकिंग हो जाती है, तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले सबसे ऊपर की मंजिल पे पहुंचा जाए, बीच की मंजिलों में पहुंचा जाए, वहां से जहां से लोग बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं वहां सीआईएसएफ का जवान अंदर भागता है। Indeed, truly a force with a humanitarian face. That is the Central Industrial Security Force, the CISF, of which we are celebrating the raising day today, and you're listening to it live and exclusive on different frequencies of All India Radio. As we have the human assistance, the evacuation of the distressed being carried out on an inflatable balloon of sorts, people jumping onto it from a height of more than 20 feet. जी, आज ये कहा भी गया कि किस तरह से हम आधुनिक बनते जा रहे हैं और नए नए इक्विपमेंट को अपने उसमें शामिल कर रहे हैं। हवा भर के एक इन्फ्लेटेड सा एक प्लेटफॉर्म सा बनाया गया और तीसरी मंजिल से भी आप उसमें कूद के आपकी जान बच सकती हैं। Yes. और अगर कोई डर रहा है छलांग लगाने के लिए तो सीआईएसएफ का जवान उसको अपनी बाहों में पकड़कर उसके साथ छलांग लगाता है ताकि उस जान को बचाया जा सके। ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर। Yes, sir. Awe-inspiring display, ladies and gentlemen. CISF showcasing their mettle in human assistance and disaster relief. Their firefighting capabilities and skills on apt display here this morning. जितने भी शब्दों में हम कहते रहते हैं लेकिन आम लोगों को और आम नागरिकों को, सुनने वालों को समझ नहीं आती, और यहाँ बैठे हुए परिवार के उन सदस्यों को जिनके परिवार के सदस्य सीआईएसएफ में काम करते हैं शायद वो ना पहचान पाए कि किस तरह से काम करना होता है। आज उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ दी गई है कि अग्निशमन के लिए और ह्यूमन रिसोर्स को बचाने के लिए किस तरह से ये दल कार्यरत है, प्रयासरत है भारत के कोने कोने में। Indeed, well said, Nitish. There's one common fabric across the country, from north to south, from east to west, I beg your pardon, when it comes to preserving and protecting our installations, our phases of economic progress. Then you'll find one common element in all of them, and that is the Central Industrial Security Force under the Ministry of Home Affairs, Government of India. उद्योग तभी तरक्की करता है जब उसको सुरक्षा का वातावरण मिले, उसको ये एश्योरेंस मिले कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अगर औद्योगिक इकाई लगाएंगे तो उसकी प्रोटेक्शन पूरी होगी ताकि हम अच्छे तरीके से कार्य कर सके। और ये जो एश्योरेंस है, ये पक्का वादा जो है वो सीआईएसएफ भारतीय उद्योग को दे रहा है। Yes, absolutely. CISF, an equal stakeholder in India's progress, in India's Atmanirbhar push. CISF ensuring that all our phases of economic progress and development remain safe and secure. The CISF men and women steadfast in their commitment towards Prime Minister Narendra Modi's goal of Atmanirbhar Bharat. As the demonstrations come to a close, the CISF personnel, the brave firefighters of the CISF, marching on the spot, jogging on the spot, coming into a formation on this glorious morning, on this awe-inspiring morning, on CISF Raising Day 2021, at the 5th Battalion grounds here. As the sprinklers are off. Yes, the sprinklers are off, Nitish. It's a celebratory atmosphere here. A water salute, a water cannon salute being provided to the firefighters. Of course, they deserve it. और बिल्कुल बीच में आप देखिए, अरे तिरंगा, तीन and the रंगों water के पानी की cannon बौछार, has क्या बात है? the three colors. तीन रंगों से पानी की बौछार दी गई है उन अग्नि सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने यह डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे यहाँ दिया कि किस तरह से वो बचाव कार्य में लगे हुए हैं और लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति और लोगों को की जान और माल की क्षति को सीआईएसएफ बचा चुका है और आगे भी करता रहेगा। Absolutely, the color, the aqua tricolor, lighting up the sky. It's an absolutely mesmerizing view. Water sprinklers on both sides and the tricolor in aqua form in front of us as the chief guest of the morning, Union Home Secretary Shri Ajay Bhalla, along with the DG CISF Shri Subodh Kumar Jaiswal, look on. भुवन, इतना स्पेक्टेकुलर था सब कुछ, हमें भी शब्दों के लिए कई बार थोड़ा सा सोचना पड़ा कि क्या कहा जाए, क्योंकि निशब्द हो रहे हैं सब लोग देखकर। आप देखिए
पिन ड्रॉप साइलेंस है और सिर्फ जब ये साइलेंस टूटती है तो तालियों की गड़गड़ाहट के लिए ही टूटती है। Indeed, everyone joining in unison. Jai Ho indeed. Jai Ho CISF ki. For this force stands tall as an equal stakeholder in India's progress, in India's march. A rouse of applause. Everyone standing, applauding the brave hearts of CISF. जी, और अब यहाँ पर अनाउंसमेंट ये किया गया है, जैसे आपने पहले कहा था कि एक सुरक्षा जिसको हम भूल रहे हैं और बहुत ज़रूरी है, जिसका दायित्व भी हम सबके कंधों पर है, लेकिन CISF भी उस दायित्व को महसूस कर रहा है, और वो है पर्यावरण सुरक्षा का। ट्री प्लांटेशन के लिए एक यहाँ पर ड्राइव होगी और हम कोशिश करेंगे इस बीच में कि ये जो इस समय इस सारे कार्यक्रम को जिन्होंने अपनी आंखों से यहाँ पर देखा और हमने आप तक पहुँचाया, उनका अनुभव आप तक लेकर आए। थोड़ी ही देर में हम आपके साथ, हम तो आपके साथ हैं ही, कुछ एक बातें आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि CISF किस किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, कौन कौन से औद्योगिक यूनिट को या VVIP को सुरक्षा दी जा रही है, VIP को सुरक्षा दी जा रही है। यदि उन सबका हम नाम आपको बता दें तो आप समझ पाएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्य CISF यहाँ पर कर रहा है। और हमारे साथ उससे साथ ही कुछ श्रेया जी हमारे साथ हैं। श्रेया जी, आप बताइए कि आज इस मौके पर आप कैसे आई, बैकग्राउंड क्या है? आपके पेरेंट्स क्या CISF में हैं? मेरे पापा IGAPS हैं, विक्रम सिंह मान। अभी मैं अपनी फ्रेंड और मम्मी के साथ आई हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वेरी नाइस। पापा बहुत कुछ बार घर में आके कहते होंगे कि हम ये कार्य करते हैं, ऐसा काम करते हैं, हाँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको कभी अंदाजा था। नहीं था, मतलब वो बताते थे कभी कभी क्या क्या करते थे, बट इट्स वेरी नाइस, इट मेक्स मी। लेकिन आज ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन देखी, इसमें आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? वो बॉम्ब वाला जो गाड़ी, वो VIP सिक्योरिटी वाला था। तो आपका भी मन है कि मैं आगे बढ़कर ऐसे ही किसी फोर्सेस में शामिल हूँ? हाँ जी, मेरा भी मन है, मैं सिविल सर्विसेज देके IPS बनूं अपने पापा जैसे। IPS बनना चाहती हैं? हाँ, फिर तो आप चुनौतियों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। NCC या इस तरह से कुछ आपने ज्वाइन किया है? स्कूल में NCC मैंने ज्वाइन किया है, आई मीन DPS आके पे। आज के इस पूरे आयोजन को देखकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है ऐसे देख के लगता है कि और हमें देश के लिए और कुछ कुछ करते रहना चाहिए। Indeed, we should always we are be ready absolutely for proud of you, challenges. and we are with you in your goal as you push towards becoming a officer of the government. Thank you But so tell us much. this morning, how does it feel to be a part of a glorious event such as this, the CISF Raising Day, and what does it mean not just for the officer but also for the family? I feel very proud, and it gives a sense of pride, and you know, I feel proud, like my dad is in CISF, and I see him work so hard every day, and I'm so proud of him. Of course, we are all proud of him, Shreya. Yes. We are all with you and your family. Thank as you. Your father serves the country in his best capacity. Thank you for joining us this morning, Shreya. Thank you so much for and we giving wish me you an all the opportunity. best for your future endeavors. Thank you. थैंक यू सो मच। और अपने सुनने वालों को मैं कह रहा था कि जिस तरह से आपको बताया जाए कि कहाँ कहाँ पर ये कार्य कर रहा है बल, तो आप समझेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस बल के ऊपर है। 351 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है CISF, जिसमें देश के 64 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हवाई अड्डे, परमाणु एवं अंतरिक्ष संस्थान, समुद्री बंदरगाह। और इस समय मेरे साथ एक और ऑफिसर की डॉटर हैं, अर्शिया। अर्शिया, स्वागत है आपका। आप बताइए कि आप कैसे यहाँ पर आई हैं और कैसा महसूस कर रही हैं? Okay. So my dad is which language? Yeah. Please go ahead. So my dad is an IPS officer and my mother is in the Indian Revenue Service. Today I accompanied my friend whose dad is in CISF, and it was really great coming here today. And what was the most spectacular thing that you saw here? By pointing out any one thing, I think I won't be able to do justice to the rest of them. Each and everything was equally good, and I enjoyed everything here. Were you ever terrified to see the kind of sacrifices these forces are making? Yeah, the way we see it on screens and we read in newspapers, I think that's just not enough. The way I saw this today, it was just executed exactly the way they do it at that time. And it was a very new experience for me.
Indeed, Asha. Tell us, as a young woman, what does it mean for you to see and be a part of events like this? How motivated are you to serve your country in one way or the other, be it similar in one of the uniformed forces, or how do you plan on going through and carrying forward this motivation after this glorious morning? So, serving one's own country is the biggest gift which one can get and the biggest service too. And I think it all begins at the grassroots level. So whenever I see such things happening, it really motivates me. And then hearing about the work my parents do and the kind of work which happened here, I felt really motivated. And what do you aspire for? What do you want to become when you grow up? You want to join services? As of now, my only plan is that whatever I do should be contributing towards the nation. And at the end of the day, when I'm done with my work, there should be some sort of satisfaction that I should get from the work. Absolutely, Asha. That's the right spirit. Thank you for joining us this morning, and we wish you all the best for your future endeavors. Ladies and gentlemen, that was Asha and Shreya, two young women from the CISF family, joining us this morning, speaking on their experiences on CISF Raising Day 2021. Again, a fitting tribute and a fitting finale, as we say. When you talk of CISF, you have to talk of the family members too. And we are listening to two of them right now, elaborating on their experiences on being part of the CISF family. Absolutely. और अब जिस तरह से परेड खत्म हुई और एक उत्सव का माहौल हमारे सामने हो गया है, अब प्रोटोकॉल को तोड़कर, प्रोटोकॉल तो नहीं है क्योंकि जब खत्म हो गया तो इस समय प्रोटोकॉल नहीं है, लोग सामने आ गए हैं, परिवार के सदस्य सामने आ गए हैं, ग्रुप फोटोग्राफ्स हो रही हैं. ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है. और एक ये जो इस समय मौका है, ये जब देख लिया सबने अपनी आंखों से कि क्या कुछ है, और ये लग रहा है कि हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है इन फोर्सेस के हाथों में, हमारा उद्योग कितना सुरक्षित है, तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है. कितना आसान से माहौल में सब लोग खिले खिले दिख रहे हैं. Indeed, the parade is over, the program has come to a culmination, and families of all officers and jawans now mingling together on this special day on CISF Raising Day 2021, the live broadcast of which came to your radio sets and digital devices on All India Radio and our official app, News on AIR. Nitish. तो जी, अब मैं अपने तकनीकी सहयोगियों SD ध्यानी, कमल सिंह, OP भारती, अतुल कुमार, विजेंद्र के साथ मैं नीतीश अरोड़ा अपने सहयोगी कमेंटेटर भुवन अपूर्व झा के साथ आपको ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी के स्टूडियोज में वापस लिए चलता हूं. धन्यवाद. अभी आप इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित CISF परेड और अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे नीतीश अरोड़ा हिंदी में और भुवन अपूर्व झा अंग्रेजी में. You were listening to the live broadcast of CISF Day Parade and Investiture Ceremony organized on the occasion of Raising Day of CISF, Central Industrial Security Force from Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Our commentators were Nitish Arora in Hindi and Bhuvan Apurva Jha in English. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.